Good morning, my dear students. In the previous video, I had given you the explanation of the chapter 2 shops. And if you do remember, the story was not complete and we have done only 2 pages of the story, that is page number 86 and 87. Today in this video, I am going to give you the explanation till the end of the chapter so that you come to know the entire story. आप सबके मन में एक्साइटमेंट होगा ना कि आगे क्या हुआ, उस फ्राउनिंग मैन में परिवर्तन आया या नहीं, उसने अपने चेहरे में कोई बदलाव किया या नहीं. Isn't it? When you hear half a story, the excitement always remains. जब भी हम कोई कहानी आधी अधूरी सुनते हैं तो उस कहानी के बारे में जिज्ञासा बनी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, इस कहानी का एंड क्या होगा, इसमें चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे. बहुत सारे सवाल मन में आते रहते हैं. There are so many questions which keep troubling you, isn't it? So children, don't worry. Here I am with the story continuation. I am going to continue with the story and definitely give you the end result of the story too. But before we go to page number 88, let me give you a quick recapitulation of the story so that you come to know what we have done in the previous video. A very fast recapitulation. एक छोटा सा शहर था इंडिया में, a small city of India where there were 2 shops, जहाँ 2 shops थे. एक बुक शॉप था and एक स्वीट शॉप था. And the shopkeeper of the book shop was a smiling man. He always used to smile and he had so many things in his shop: cards, gifts, storybooks, paint brushes. And as he was a smiling man, many people went to his book shop. But the shopkeeper of the sweet shop was a frowning man. Always his eyebrows were raised up, lines were there on his forehead. He always was in an angry mood. Though he had so many boxes of sweets, different types of cakes in his shop, even jars of lollipops were there. But people did not like to go to his shop and so nobody went to his shop. The frowning man was not able to understand why nobody came to his shop. One day when he was looking outside the shop, he saw that 2 men came on the ponies and they went inside the book shop. Very soon he saw that some girls also came and they went inside the book shop. Now all the people were coming one by one and they were going to the book shop, but nobody was entering his sweet shop. वो बहुत चिंतित हो गया कि सभी लोग एक एक करके बुक शॉप में जा रहे हैं और कोई मेरी दुकान नहीं आ रहा है. He frowned even more than before. वो पहले से भी ज़्यादा अपनी भावों को चढ़ाने लगा, पहले से भी ज़्यादा एंग्री लुक उसके चेहरे पे आने लगा. At that time, 2 women with babies, उसी समय 2 औरतें अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ उसके स्वीट शॉप में आ गईं. And one baby saw the frown on the man's face. उसमें से एक बच्चे ने, एक बेबी ने शॉपकीपर के चेहरे पे फ्राउन देख लिया, जो उसकी भवें तनी हुई थी और उसके फोरहेड पे लाइनिंग आए हुए थे. एंग्री लुक वाला चेहरा लग रहा था उसका. तो उस बच्चे ने उसे देख लिया. द बेबी सॉ दैट फ्राउन ऑन हिज हेड, ऑन द मैन्स फेस, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. और वो रोना शुरू कर दी. नाउ टिल हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट. द women went out without buying anything.
वो औरतें दुकान से बाहर निकल गई बिना कुछ खरीदे हुए। नाउ हाउ विल दे बाय? जस्ट इमेजिन, both of them were having babies and one of the babies started crying by seeing the face of the man. So will that woman stay there anymore? कोई भी माँ अपने बच्चे को रोते हुए देख सकती है? नहीं देख सकती है। और जब ये मालूम चल जाए कि बच्चा किसको देखकर रो रहा है तो वो जरूर वहां से हटना चाहेंगी ताकि बच्चा रोना बंद कर दे। So the same thing that woman did. When she saw that the baby was crying by seeing the frowning man's face, then she did not buy anything and she went out of the shop. As they opened the door, when that woman was going out of the shop, she opened the door of the shop. And when she opened the door of the shop, the shopkeeper saw his face in the mirror of the door. Nowadays, to whichever shop you go, they have mirror in their doors. The half part, or in many of the shops, you can see that the entire door is made of glass only. आजकल लगभग सभी दुकानों में आप देखें कि दुकानदार का जो हाफ पोर्शन होता है दरवाजे का, दुकान का जो हाफ दुकानदार का नहीं, दुकान का जो दरवाजे का जो हाफ पोर्शन होता है वो मिरर का बना होता है, शीशे का बना होता है। या फिर बहुत सारे दुकानों में पूरा का पूरा दरवाजा ही शीशे का बना होता है, मिरर का बना होता है, सो दैट द पीपल हु मूव आउटसाइड द शॉप दे कैन सी व्हाट इज देयर इनसाइड द शॉप। अगर लकड़ी के या आयरन के दरवाजे वो बना लेंगे तब तो अंदर क्या है, दुकान के अंदर क्या क्या सामान है दिखाई ही नहीं देगा। सो दे मेक द डोर्स विद द मिरर्स यूज्ड इन इट। डोर्स को वो ऐसा बनाते हैं मिरर से ताकि अंदर का सामान दिखाई दे। सो व्हेन दिस वुमेन वेंट आउट ऑफ द शॉप, द फ्राउनिंग मैन सॉ हिज फेस इन द मिरर ऑफ द डोर। इस व्यक्ति ने, इस शॉपकीपर ने अपना ही चेहरा देखा उस मिरर में जो कि दरवाजे में लगा हुआ था। What a frown, he said. अपना चेहरा देखकर ही वो बोलने लगा कि ये कैसा चेहरा है, ये चेहरे पे तो फ्राउन बना हुआ है, मतलब लाइनिंग है उसके फोरहेड पे। यू कैन सी हियर, सी द लाइनिंग्स आर देयर ऑन हिज फोरहेड। ये लाइनिंग आपको फोरहेड पे दिख रहे हैं ना, ये फ्राउन्स के लाइन है। जब आप गुस्से में रहते हैं, चिढ़े हुए रहते हैं, तो ये फ्राउन्स आपके लिलाट पर, आपके फोरहेड पे खुद बन जाते हैं। सो ही सेड, व्हाट अ फ्राउन। ही लुक्ड अगेन एंड सॉ दैट इट वॉज हिज ओन फेस। फिर उसने फिर से बहुत ध्यान से अपने को मिरर में देखा, अपने को शीशा में देखा और पाया कि अरे ये तो मेरा ही चेहरा है। When he saw his face again in the mirror, he saw that, oh, this is my face only. He was so surprised that he began to laugh. And when he saw the frown on his face, and he realized that it was his face only with such a frown, he was surprised. वो आश्चर्य में आ गया और वो खुद हंस पड़ा। He started laughing. He laughed so loudly that the babies also began to laugh. वो इतनी जोर से हंसने लगा कि जो बेबीज दुकान के बाहर निकल गई थी उसको हंसता हुआ पाके वे बेबीज भी हंसने लगे। The babies also started laughing by seeing the man laugh, by seeing the shopkeeper laugh. Now see, I told you that the babies follow the emotions that they see the people in front of them. जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबीज होते हैं, वो वैसा ही करते हैं जो उनके सामने लोग करते हैं। आप उनके सामने हंसिए तो वो भी खिलखिलाकर हंसते हैं। आप उनके सामने रोने का नाटक कीजिए तो वो भी रोने लगते हैं। आप उन्हें गुस्सा से बप ऐसे डांटिए तो वो भी आपको बप इस तरह से डांट लगाते हैं।
सो द स्मॉल बेबीज, छोटे से प्यारे बच्चे जो होते हैं वो आपके इमोशन को कॉपी करते हैं, वो आपकी इमोशन की नकल उतारते हैं. सो द बेबीज दैट वेंट आउट ऑफ द शॉप, व्हेन दे सॉ द शॉपकीपर लाफिंग, दे ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग. वन वुमेन केम बैक. अब उन दो औरतें बाहर चली गई थी, उसमें से एक वापस आई एंड टुक अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स, और वो एक लॉलीपॉप का बॉक्स खरीद कर ले गई. नाउ सी व्हाट अ सडन चेंज. अर्लियर nobody was coming to his shop when he was having a frowning face, and now as soon as he started laughing, the woman came inside the shop and she bought a box of lollipops. Isn't this a change? क्या ये चेंज नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ ना. जैसे ही चेहरा फ्राउनिंग से बदलकर स्माइलिंग हुआ, दुकान में सामान सेल होने लगा. The other boys and girls heard his laugh and came to buy sweets. ये दुकानदार हंसता ही जा रहा था. And when the boys and girls who were nearby, और जब लड़के लड़कियां जो उस दुकान के आसपास थे, जब उन्होंने इस स्वीट शॉप वाले दुकानदार को हंसते देखा, तो वो वापस आए और उन लोगों ने भी स्वीट्स खरीदे, उन लोगों ने भी मिठाइयाँ खरीदी. Men and women also came to buy cakes. बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे आदमी लोग, बहुत सारी औरतें वे आईं और उन्होंने केक्स खरीदे. देखिए, वन बाय वन उसकी दुकान की सेल बढ़ने लगी, उसकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी. The people started buying more and more things from his sweet shop. Earlier the woman bought box of lollipops. Then the boys and girls bought sweets. Then men and women bought cakes. From that day, the shopkeeper always smiled and his shop was always full of people. उस दिन के बाद वो शॉपकीपर हमेशा मुस्कुराता रहा. उस दिन के बाद से वो शॉपकीपर हमेशा मुस्कुराता रहा. एंड हिज शॉप वॉज ऑलवेज फुल ऑफ पीपल. और उसका दुकान हमेशा लोगों से भरा रहता था. नाउ सी, सच अ नाइस एंड टू दिस स्टोरी. सच अ नाइस चेंज दैट केम इन दिस मैन. ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया. एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गुस्से में रहता था, हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था, हमेशा उसके चेहरे पे लाइनिंग बनी रहती थी उसके फोरहेड पे, उसने अपने आप में पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया. ही नाउ ऑलवेज केप्ट स्माइलिंग. ही ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस. नाउ द फ्राउनिंग मैन हैज चेंज्ड एंड ही हैड बिकम a smiling man, just the way the man used to smile in the book shop. वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे बुक शॉप का शॉपकीपर था. He was also a smiling man, and now the shopkeeper of the sweet shop was also a smiling man. Now children, what message this story is giving you? This story is giving you a very simple message that nobody wants to look to a person who has got an angry look on his face, who has got a frown on his face. All of us has a tendency to look at the people's smiling face. We all love those people who are always happy, who always keep smiling, who not only is happy himself but wherever he goes he also makes people happy. हम सब वैसे ही आदमी के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं जो खुद में खुश रहता हो और जो आसपास लोगों को भी खुश रखता हो. आप क्या उस व्यक्ति के पास ज़्यादा देर बैठना चाहेंगे या बैठना भी चाहेंगे जो हमेशा आपसे गुस्से में बात करे, हमेशा
हमेशा आपको चिढ़ कर बोले, हमेशा टेंशन में रहे, हमेशा गुस्से में बड़बड़ाता रहे, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहेंगे? विल यू लाइक टू स्टे विद दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज इन एन अनहैप्पी मूड, ऑलवेज इन एन एंग्री मूड? नो, you won't. So this story gives you a very simple message. Always remain happy. Always have a smile on your face. Difficulties come in everybody's life. The days are not the same all the time. सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, सबके जीवन में कुछ तकलीफ़ें होती हैं, but in spite of that we should learn the art of being happy. पर इन सब के बावजूद हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, because God loves to see his people happy. भगवान भी अपने लोगों को, अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं. So with this message I am going to end the story, and today I am going to give you your classwork and homework. Listen to it properly. Children, in the previous video I asked you all to make the mask of a smiling man. Today I am asking you to make the mask of a frowning man. आपको एक मास्क बनाना है, ऐसा मास्क जो अपने चेहरे पे आप लगा सकें, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसे अपने चेहरे पे लगा के घूम सकें. ओके, कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं जाना है, आप घर पर ही इसे जस्ट फॉर फन. And this is something which is a part of your syllabus. I am not giving you anything which is out of the syllabus. मैं वही करवाती हूँ जो आपके सिलेबस का हिस्सा है. इसलिए आप एक फ्राउनिंग मैन का फेस बनाएंगे. एक ऐसा फेस बनाइए जिसको देख के लगे कि वो फ्राउन कर रहा है, वो गुस्से में है. उसके फोरहेड पे लाइनिंग होनी चाहिए और वो थोड़ा गुस्से में दिखना चाहिए. आप ऐसा मास्क बनाइए, उसे बढ़िया से कलर कीजिए. यू कैन यूज़ A4 शीट, यू कैन यूज़ KG पेपर, यू कैन यूज़ एनी पेपर फॉर मेकिंग दिस मास्क. आप किसी भी तरह का पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं. स्क्रैप बुक में भी जो पेपर होते हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है. यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो. सो योर होमवर्क इज मेक अ मास्क ऑफ अ फ्राउनिंग मैन. And your classwork is you will do 1 page writing from this chapter. ठीक है, आप इस चैप्टर में से 1 पेज राइटिंग करेंगे. कोशिश कीजिएगा फर्स्ट पेज से ही करने का. ओके, ऑल ऑफ यू राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज, जहाँ तक एक पेज आपके कॉपी में हो जाए. यू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन अ स्मॉल सिटी ऑफ इंडिया. यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए and write in a beautiful way. एक बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने कॉपी में राइटिंग कीजिए. 1 page writing and then you send it to me. Let me see that what kind of writing I am getting today from my dear students. Thank you.